Hi children, today we will study further part of the chapter freedom, and last part में we were talking about the harm principle, and in after harm principle next topic बताने से पहले in this chapter till now you have studied about the two dimensions of the freedom. Number one, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब हमने फ्रीडम को मानते हैं कि हमें बाहर से कोई हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स. एंड नंबर टू, वी हैव टेकन फ्रीडम एज एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ. हमारे पास अवसरों का बढ़ाने का मौका होना चाहिए अपने आप को अभिव्यक्त करने का. लाइक दैट वी हैव टेकन freedom till now in this chapter. And in political theory, these two dimensions of the freedom are taken as negative liberty and positive liberty. So today we will study about these two things. Ki what do you mean by negative liberty and what do you mean by positive liberty? What do you mean by positive liberty? First of all, we will study about what is negative liberty. Negative liberty is an area of freedom that tries to define an area in which the individual would be inviolable. Inviolable means never to be broken or dishonored. इसका मतलब होता है आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो. तो नेगेटिव लिबर्टी सेज इट ट्राइज टू डिफाइन एन एरिया वेयर इंडिविजुअल, एक आदमी जो है दैट कैन नॉट बी, दैट वुड बी इनवायलेबल, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो, और दैट ही और शी वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू कैन डू सो, वॉट एवर he or she wish to become, that he or she can become. आप उसको रोक नहीं सकते हो, वो जो चाहता है वो कर सकता है, और वो जो बनना चाहता है वो कर सकता है. और this is an area, negative liberty is an area of no interference by the external authority. एग्जाम के अंदर to remember all these things, to write an answer, make some points, otherwise you will find it very difficult to explain them. Make some points, these points will help you to explain this matter in a proper manner, like that as I have done. 1, 2, then this negative liberty is a minimum area, एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र है that is sacred, एक छोटा सा पवित्र क्षेत्र है where individual is not इंटरफेयर, जहां पर एक आदमी के मामले में दखलंदाजी नहीं की जाती है, इज नॉट टू बी इंटरफेयर, जहां एक छोटा सा एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है, सैक्रेड मतलब पवित्र, वेयर इंडिविजुअल इज नॉट टू बी इंटरफेयर, जहां उसके कामों में उसके एक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है. देन दिस एग्जिस्टेंस, ध्यान सुना, this existence of minimum area of non-interference, एक छोटा सा non-interference का ये जो क्षेत्र है, that tells you, is it clear, that minimum area of non-interference, उनके कामों में न के बराबर दखलंदाजी, this minimum area of non-interference tells you that human nature and human dignity needs no obstruction in their matters. मतलब एक आदमी का नेचर, आदमी की प्रकृति और आदमी की गरिमा, ये एक ऐसा एरिया वेयर देयर इज नो पर्सन कैन डू द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वॉट एवर एक्ट पर्सन इज डूइंग दैट शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अदर्स, दूसरों के द्वारा उसके कार्यों में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए. एंड how big this area would be,
ये एरिया कितना बड़ा होगा, एंड व्हाट डज इट कंटेन, और इसके अंदर क्या होना चाहिए मैटर, दैट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन. What, how big the area should be there, and what should be the what should this contain, that is the matter of discussion. And this matter will continue in the further part also, in future also. ये और भी आगे matter of discussion बना रहेगा, as long as जितना बड़ा, as much bigger the area of non-interference will be there, the more freedom will be enjoyed by the person. जितना non-interference का एरिया बड़ा होगा, the more the freedom will be enjoyed by the person. ये जो नेगेटिव लिबर्टी का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन, it argue for an inviolable area. एक ऐसे इनवायलेबल एरिया के बारे में ये कहता है. इनवायलेबल मतलब जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो, ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. इट टेल्स अबाउट एन इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच अ पर्सन कैन एक्सप्रेस हिज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. एक लड़का या लड़की अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है. इट टेल्स अबाउट दैट आइडिया. दिस इफ एरिया इज मिनिमम, अगर दिस इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज मिनिमम, देन द ह्यूमन डिग्निटी इज कंप्रोमाइज. तो उस हालात में अगर वो क्षेत्र सीमित है तो एक ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी जो है दैट वुड बी कॉम्प्रोमाइज. वो बंदिश में रहेगा. फिर अगर वो स्मॉल है, जितना ज़्यादा नॉन इंटरफेरेंस का एरिया होगा, दैट पर्सन विल एंजॉय मोर फ्रीडम. And अगर वो एरिया, that inviolable area of non-interference is minimum, then the human dignity gets compromised. तो आदमी की गरिमा जो है वो compromise हो जाएगी, सीमित हो जाएगी. Through this one example, you can understand that what choices we should have, what choices should we have for wearing the clothes in various areas. What type of dress, clothes we should wear in school or in the playing ground or in the offices. Is that a matter? Is that a matter which is minimum area and एक सीमित मात्रा वाला क्षेत्र है where choice can be interfered with by you can say कि external authority, क्या उसको interfere नहीं करनी चाहिए. whatever clothes we are wearing, that should not be interfered with by the external authority. उसको हम वहाँ क्या पहनते हैं, वहाँ बाहर से कोई interference नहीं होना चाहिए. और this choice of wearing the clothes should be interfered by the religious authority or state या राज्य या कोई धार्मिक बॉडी जो है रिलीजियस अथॉरिटी, वो इंटरफेरेंस कर सकती है. या आईसीसी प्लेइंग ग्राउंड के आईसीसी जो क्रिकेट बॉडी, या फिर सीबीएसई क्लास के अंदर, सीबीएसई आपको मालूम है इस बॉडी टू रन द एजुकेशन इन अवर कंट्री, वो क्या उसका इंटरफेरेंस होना चाहिए. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. एंड तो नेगेटिव लिबर्टी ये कहती है, दैट आर्ग्यूज दैट व्हेन यू आस्क वन क्वेश्चन, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज नेगेटिव लिबर्टी की ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर. मैं ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके ऊपर मैं स्वामी हूं. और यू कैन से दिस नेगेटिव लिबर्टी आइडिया tells about the explain the idea of freedom from. ये आपको किस से, आप हिंदी में यू कैन से व्यक्ति क्या करने से स्वतंत्र है उसको एक्सप्लेन करता है. दिस नेगेटिव लिबर्टी आइडिया एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम. व्यक्ति क्या करने से मुक्त है उस आइडिया को एक्सप्लेन करता है. दैट इज
नेगेटिव लिबर्टी, और उसके जो ऑपोजिट होता है उसके उल्टा, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी. तो नाउ फर्दर नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी. Now, as I've told you that in the political theory, these two dimensions of the freedom are known, two dimensions. One is absence of external constraint, and second dimension of freedom that I told you, that is about the expression expansion of our ideas. One should get a chance to express, one should get the opportunities to express himself. That is the second dimension of the freedom. And I told you in this political science, these two dimensions of freedom are known with the positive liberty and negative liberty. Earlier we have talked about the negative liberty, and now positive liberty. In the negative liberty, I told you that is that explain the idea of freedom from, मतलब व्यक्ति को क्या करने से मुक्त है, व्यक्ति क्या करने से मुक्त है. बट दिस पॉजिटिव लिबर्टी एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू. हिंदी में इसको कहते हैं कि कुछ करने की स्वतंत्रता. दोनों में डिफरेंस है, कुछ करने की स्वतंत्रता, और उसमें बोला व्यक्ति क्या करने से मुक्त है. तो दैट इज द डिफरेंस. इसमें बोलते हैं फ्रीडम टू मीन्स व्यक्ति को कुछ करने की स्वतंत्रता. Like that, make some headings so to explain this positive liberty. And when you ask one question, in response to that question, the answer will come that explains the positive liberty. If you ask a question, who governs me, मेरे ऊपर कौन शासन करता है, तो what answer will you, according to freedom, what answer will come? I govern myself. मैं खुद अपने आप पर शासन करता हूँ. तो that shows the positive liberty. And ये जो positive liberty का जो discussion है, it has got a long tradition. इसका एक लंबे समय से इसके ऊपर विचार विमर्श चलता रहा. And that can be traced, ये पता लगा जा सकता है, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ रूसो, हेगल. दीज ऑल आर पॉलिटिकल थिंकर्स. रूसो, हेगल, कार्ल मार्क्स, देन महात्मा गांधी जी, देन औरोबिंदो, एंड इवन दोज पॉलिटिकल थिंकर्स हु गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकर्स. फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑल्सो you can have the idea of the positive liberty. And this tradition of positive liberty looks at the condition and nature of the relationship. ये क्या दिखता है? परिस्थितियां और प्रकृति, relationship between individual and society, उसको समझने की कोशिश करता है. This positive liberty tries to or looks the condition and nature of the relationship between the individual and society. Plus, it tries to improve this condition. उन हालातों को वो improve करने की कोशिश करता है, so that there should be few constraints, ताकि कम से कम बंदिशें रहें for the development of the personality of an individual. उन हालातों को पहले तो ये रिलेशनशिप जो होता है इंडिविजुअल और सोसाइटी का, उसको नेचर और कंडीशन जो होते हैं उनको उनकी ओर ध्यान देता है, उनको समझता है और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, सो दैट देयर शुड बी अ फ्यू कॉन्स्टेंट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ताकि एक आदमी की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में कम से कम बाधाएं आए. यू कैन से इंडिविजुअल इज लाइक अ फ्लावर.
इंडिविजुअल एक फूल की तरह, वो ब्लॉसम कब होगा, खिलेगा कब? व्हेन सॉइल विल बी फर्टाइल, व्हेन सन इज जेंटल, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, व्हेन वाटर इज एडिकेट एंड रेगुलर केयर इज टेकन, अगर नियमित उस पर ध्यान रखा जाएगा तो दैट इंडिविजुअल विल ब्लॉसम, वो एक फ्लावर है इंडिविजुअल और वो खिलेगा तब जाके। एग्जाम के अंदर तो इफ सपोज आस्क यू व्हाट राइट अ नोट ऑन पॉजिटिव लिबर्टी, तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट, बट सपोज दिस राइट दिस स्टेटमेंट, इंडिविजुअल मस्ट गेट द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव कंडीशंस in some domains मतलब in political domains, in social domains, in material domains, उसको कुछ हालात मिलने चाहिए पॉजिटिव वे में to develop himself. So how you have to answer it? That answer is given in the page number 27 and paragraph number 3. अगर ये लाइन आती है तो that you have to write answer, but if they ask you write a note on positive liberty, so that portion is also the answer of this one. लेकिन अगर ये लाइन पूछते हैं तो only this one you have to explain where it is given. I told you page number 27 paragraph number 3. So individual should get a benefit of positive condition in material domains, in political domains and in social domains. जगत में domains का मतलब एरिया, क्षेत्र, to develop himself, to develop his capability, her और his, मैं his बोल रहा हूँ, हर भी आएगा, लड़की होगी तो हर होगा, लड़का होगा तो his होगा, his होगा. So मतलब person should get this one. कैसे होगा? Capability of a person, of an individual should not constrained by poverty and employment. गरीबी और बेरोजगारी की वजह से एक इंडिविजुअल की जो सिचुएशन है उसकी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट शुड नॉट स्टॉप, वो बंदिश में नहीं आ जाने चाहिए. एंड अ पर्सन, इंडिविजुअल शुड गेट एडिकेट रिसोर्सेस, उसके पास अच्छे खासे मटेरियल रिसोर्सेस उपलब्ध होने चाहिए टू फुलफिल हिज वांट्स एंड नीड्स, अपनी चाहत, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके. एंड इंडिविजुअल शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो दैट whatever laws we are making, that should reflect his choices, ताकि जो हम कानून बना रहे हैं उसमें उसको अपनी चॉइसेस दिखनी चाहिए कि मैंने ऐसा सोचा, ऐसा चॉइस किया तो वो कानून में दिख रहा है. और अगर ये नहीं हो तो एटलीस्ट वॉट एवर लॉस वी आर मेकिंग, प्रेफरेंसेस ऑफ दैट इंडिविजुअल शुड रिफ्लेक्ट इन दोज लॉस. उसकी जो प्राथमिकता है, वो जो प्रेफरेंसेस बनाता है, वो उन लॉस में दिखाई देनी चाहिए. एंड इन सबसे ऊपर, अबव ऑल, टू डेवलप द माइंड and intellect of an individual, a person should have the access to the education and to lead a good, or you can say reasonable good life. एक अच्छा जीवन जीने के लिए a person should have an access to the opportunities. उसको अच्छे खासे अवसर मिलने चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, और एक अच्छा अपना माइंड डेवलप करने के लिए, अपना इंटेलेक्ट डेवलप करने के लिए. ही शुड हैव एक्सेस टू द एजुकेशन एंड टू हैव अ रीजनेबल गुड लाइफ. अ पर्सन, इंडिविजुअल शुड हैव द एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटीज, एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज, उसको अच्छे खासे मौके मिलने चाहिए. तो दैट इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव लिबर्टी. नाउ दोनों में अगर एग्जाम में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी, तो व्हाट यू हैव टू राइट, दैट इज गिवन इन पेज नंबर 27 लास्ट पैराग्राफ एंड पेज नंबर 28 फर्स्ट पैराग्राफ. वेरी स्मॉल थिंग्स दे हैव टोल्ड इन शॉर्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन में दे कैन आस्क. सो पॉजिटिव लिबर्टी जो है,
पॉजिटिव लिबर्टी जो है दैट शेयर्स, दैट टेल्स, दैट रिकग्नाइजेस दैट वन इंडिविजुअल इज फ्री इन सोसाइटी। एक व्यक्ति समाज के अंदर आज़ाद है, नॉट आउटसाइड इट, समाज के बाहर वो आज़ाद नहीं है। एंड सो वी शुड ट्राई टू मेक सच अ सोसाइटी विच एनेबल्स इंडिविजुअल फॉर हिज डेवलपमेंट। एक ऐसा समाज का हमको निर्माण करना है सो दैट वी कैन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। वेयरएज जो पहले बताया था नेगेटिव लिबर्टी कंसर्न्स अबाउट द इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। वो हस्तक्षेप नॉन इंटरफेरेंस का मतलब हमारा जो फ्रीडम है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दैट वो बताता है, दैट इज negative liberty. Negative liberty tells about the concern with the inviolable area of the non-interference, and this condition not exist in the society, outside the society. वो समाज तक सीमित नहीं रहेगी, उसके लिए आपको उससे बाहर जाना पड़ेगा, आउटसाइड दैट एरिया। और इसीलिए this negative liberty would like to expand this minimum area. वो जो मिनिमम एरिया सोसाइटी तक सीमित कर दिया उसको एक्सपेंड करना चाहेगी नेगेटिव लिबर्टी, और एज मच एज इज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल होता है उसको वो एक्सपेंड करना चाहेगा, कीपिंग इन माइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। समाज को स्थिर भी रखना है, उसमें उथल पुथल नहीं मचानी है। उस बात को भी ध्यान में रखना है कि नेगेटिव लिबर्टी विल tries to expand this minimum area as much as possible is possible, keeping in mind the stability of the society. And general way में you can say this both things, negative liberty and positive liberty both go together and support each other, but sometime, or you can say tyrant, T-Y-R-A-N-T, tyrant का मतलब होता है अत्याचारी और अनकंट्रोल रूलर, जिसके निरंकुश शासक, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। that type of ruler can use this positive liberty arguments to justify his ruling. वो इस थ्योरी को यूज कर सकता है टू जस्टिफाई हिज रूलिंग, अपनी जो मन मर्जी से वो जो राज कर रहा है उसको सही साबित करने के लिए, बट ही कैन यूज दिस आइडियाज ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। दैट इज all about the positive liberty and negative liberty. And in the next class we will study this chapter only. We will study about one of the important factor regarding the freedom, that is freedom of expression. Thank you.